My dear boys and girls, I am teaching you all the lesson A Girl with Basket. Today I shall teach you all the last para of this lesson. In my previous paras of the lesson A Girl with Basket, written by William C. Douglas, I offered you all a lot of homework for doing, and I hope you all must complete your homework. Today I am presenting last para of this lesson. Now you be ready for teaching. Be concentrate and take a pen in your hand, open your book and write the difficult words which come in this para. Now I am starting, and pay attention, my dear boys and girls. The child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the basket, the money back to me. मैंने एक स्टैंजा का प्रोनाउंसिएशन किया है. अब इसमें जो कठिन वर्ड है, मैं आई वांट टू more simplify the difficult word, giving synonyms of every word. Now write. The child of 9, 9 साल की बच्ची, dressed in rags. Rags means चिथड़ा. क्या होता बच्चों? चिथड़ा. वर्न आउट, ये इसकी प्रवाची है WORN, वर्न आउट माने फटा हुआ. चिथड़ा, आप चिथड़ा जानते हैं भाई, फटा, चिथड़ा, कथरी अंग्रेजी होती है. डर्टी कहिए तो रैज की प्रयोगी क्या होता है? वर्न आउट, चिथड़ा. ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, एज का मतलब होता है कागार. क्या होता है बच्चों? कागार. और स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी. क्या होता है? भूखमरी. भूखमरी के कागार पर. तो कहने का मतलब क्या हुआ? द चाइल्ड ऑफ 9, द 9-year गर्ल who was wearing, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने शब्दों में और आसान शब्दों में जो आपको समझ में आ जाए. द 9-year refugee girl who was wearing a worn cloth. Her clothes were extremely dirty. She was not in a smart dress.
her dress and clothes were not clean and neat. She was on the edge of starvation. On the edge of starvation का मतलब क्या हुआ कि हर फैमिली, हर पेरेंट्स were dying of hunger. They had nothing for eating. आगे बढ़िए। Raised her chin. Raised her chin को सिंप्लीफाई करो। Raised her chin का मतलब the little girl lifted her face. Raised her chin को सिंप्लीफाई करते हो तो पाते हो रेज्ड मीन्स हो गया लिफ्टेड. सी लिफ्टेड हर फेस मीन्स क्या हुआ, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया. सी लिफ्टेड हर फेस एंड रीच्ड इनटू द बास्केट. रीच्ड इनटू द बास्केट को भी सिंप्लीफाई करिए. सी पुट हर हैंड इनटू, सी पुट हर हैंड इनटू बास्केट मीन्स क्या हुआ, उसने अपना हाथ अपनी टोकरी में डाला. एंड विथ ऑल दी प्राइड एंड ग्रेसियसनेस. प्राइड मीन्स क्या होता है यहाँ पर, सेल्फ रेस्पेक्ट. क्या होता है भाई, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान. विथ सी put her hand into her basket and with fully self-respect and with great dignity. Graciousness means होता है dignity, पूरे आत्मसम्मान और शान के साथ. She returned the money to the writer William C. Douglas. ये हुआ इसका एक्सप्लेन. तो एक बार पूरा फिर से आप देख लीजिए भाई, एक बार फिर देखिए इनटू इंग्लिश. द चाइल्ड ऑफ 9 refugee who was wearing dirty clothes, her clothes were torn out, her family was dying of hunger. She lifted her face and she put her hand into her basket and with fully self-respect and with great dignity she returned money to the writer William C. Douglas. ये आपका एक सेंटेंस हुआ है. अब मैं आपको अगला सेंटेंस पढ़ाने चल रहा हूं. देखिए, there was only one thing I could do. There was only one thing I could do. Only one thing का मतलब क्या हुआ, केवल एक वस्तु. राइटर विलियम सी डगलस इस वाक्य में कहते हैं कि अब मैं केवल एक ही काम कर सकता था. नाउ राइटर हैड ओनली वन ऑप्शन. ऑप्शन का मतलब क्या होता है भाई, ऑप्शन का मतलब होता है ओपी,
TI ऑप्शन माने होता है विकल्प। क्या होता है? विकल्प। नाउ राइटर हैड ओनली वन ऑप्शन विच ही कुड डू। अब लेखक के पास केवल एक विकल्प था जिसको वो कर सकता था। यहां थोड़ा सा थिंकेबल थिंग्स है भाई। अब लेखक उस लड़की की, राइटर विलियम सी डगलस wanted to help the little girl anyhow, but when she returned his money with full respect and dignity, now he had only one option for helping the little girl, because seeing the pitiable and miserable condition of little girl, writer heart moved. He wanted to help the little girl, but how? तो अब लेखक कहता है कि लेखक अब कैसे उस लड़की की मदद कर सकता था। सवाल ये है, क्योंकि लड़की ने लेखक के पैसे को पूरे आत्मसम्मान, गौरव और शान से क्या कर दिया? लौटा दिया। लेकिन लेखक के अंदर उस लड़की के प्रति उसकी गरीबी, उसकी दयनीय दशा देखकर, कपड़े फटे हुए, गंदे चिथड़े, ये सब देख करके जो है, उसकी आंखों में आंसू देख करके लेखक के हृदय में जो करुणा का भाव, जो मर्सी, जो सिंपैथी पैदा हो गई थी, वह हर हाल में एट एनी रेट राइटर विलियम सी डगलस wanted to help the little girl, but little girl returned his money with full respect and pride. तो अब कैसे उस लड़के की सहायता कर सकते थे, आगे बता रहे हैं। राइटर says that he bought the basket to प्लीज माने क्या होता है भाई? प्लीज का मतलब बच्चों होता है खुश करना। प्लीज मीन्स क्या होता है? खुश करना। इन्फिनिटिव बन गया है। टू मेक हैप्पी आप कह लीजिए। दूसरे शब्दों में और सरल शब्दों में टू प्लीज को, टू प्लीज द लिटिल गर्ल राइटर बॉट हर बास्केट। उस लड़की को खुश करने के लिए लेखक ने उस लड़की के टोकरी को क्या कर लिया? खरीद लिया। एंड व्हेन राइटर बॉट हर बास्केट सी became overjoyed। जब लेखक ने उसकी टोकरी को खरीदा, सी became overjoyed, सी became very happy, सी cheered। वह अति प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। और भाई लड़की को खुश करने के लिए ही तो लेखक ने टोकरी को खरीदा। She wiped her eyes। एक वर्ड आया है वाइप। वाइप जो वर्ड है, कलम आप चलाते रहिएगा।
अच्छे लड़के वही होते हैं जो जिनका कलम भी चलती रहती है और जिनका दिमाग भी चलता रहता है, वही अच्छे लड़के होते हैं। वाइफ अंग्रेजी का एक वर्ब है और वाइफ का मतलब होता है पोंछना। When you convert wipe into noun, you find wiper means पोछा। पोछा नाउन हो गया है जिससे हम किसी चीज को पोंछते हैं। वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंखों को पोंछा। इट मीन्स ही वॉज वीपिंग, इसका मतलब वह रो रही थी। तो द लिटिल गर्ल क्लीन्ड बाई रबिंग हर आईज, सी क्लीन्ड बाई रबिंग हर आईज, सी वाइप्ड हर टीयर्स। और सिंप्लीफाई करिए, सी स्टॉपेड वीपिंग, उसने रोना बंद कर दिया, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। सी became happy, now she was happy, she smiled, वह मुस्कुराई, अब वह खुश थी। एंड डैश्ड, एक वर्ड डैश आया है, डैश माने नोट करिएगा, रैन क्या होता है, रैन फास्ट, नोट करिएगा, रैन फास्ट। सी became happy and stopped weeping, cleaned her tears and ran fast. Dashed is converted into ran fast. She ran fast from the platform. She ran fast from the platform and went toward माने बताओ, खड़े आओ, आप खड़े आइए। टूवर्ड माने क्या होता है, टेक, बैठ जाइए, की ओर। सी ran fast toward her grass hut, her grass hut, her nest. She ran fast into her grass hut. वो अपने घास की झोपड़ी में, घास फूस के बने, she ran fast toward her grass hut and cloth tent, which were made in the lining up in the dirty places of the cities. Writer thought that her family, her poor family would have paid at least 30 cents that night. लेखक के मन में विचार आया कि हर फैमिली, हर पेरेंट्स would have must 30 cents today night. आज उस परिवार को कम से कम 30 सेंट जरूर मिल गया मेरे माध्यम से। तो इन दिस वे लेखक कहता है कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू बरेली, विलेज टू विलेज, रूरल एरियाज। When writer
reached Delhi and met Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. He told whole story to the Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. He told him, it was one reason I had fallen in love with India. बच्चों एक कठिन वर्ड आया है, आपको बताना पड़ेगा. A number of boys and girls know this word, but I want to know who can answer me. Fall in love. Any boy? Any girl? धरती वीरों से खाली है क्या भाई? शाबाश, खड़े आइए. फॉल इन लव का मतलब होता है प्रेम हो जाना. प्रेम हो जाना, प्यार हो जाना. बैठ जाइए. थैंक्स. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से राइटर ने कहा कि इट इज द मेन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया. यही कारण है, इट इज द मेन रीजन ऑफ माई लविंग टू इंडिया. आई लव इंडिया. एक कारण है कि मैं भारत जैसे देश से प्रेम करता हूं. तो मेरे बच्चों, a question can be put from this para and your question will be very complicated and very important. एक प्रश्न बनता है कि what was one reason when William C. Douglas had fallen in love with India? You are listening to me. क्या कारण था कि लेखक विलियम सी डगलस को भारत से प्रेम हो गया? क्यों भारत से वो प्रेम करने लगे? क्यों उनको फॉल इन लव विथ इंडिया? क्यों उनको भारत से प्रेम हुआ? इसका उत्तर यू हैव टू सर्च फ्रॉम द पैरा, बिकॉज दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पैरा. तो आगे बढ़िए इसका उत्तर ढूंढने के लिए. लेखक कहता है कि द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, both have pride and lively sense of decency and citizenship. They also have a passion for independence. जो the difficult word which have come in this lines, I want to mention all the difficult word. Now you write the pupil I saw in India. द पीपल माने लोगों का, लोगों को. आई सा इन इंडिया माने मैंने भारत में देखा. द मेन, ओमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, बॉयज एंड गर्ल्स. आई सा इन इंडिया
when I was traveling from Delhi to Bareilly by train, and I got down from platform to platform and talked to the pupil. लेखक कहता है कि भारत में जिन लोगों को मैंने देखा, जिन लोगों से मैंने मिला, those in the villages, whether they are living in the villages, in the rural areas, or they are living in the cities, and they are working in a high office. In a high office को सरल कर लीजिए, हाई ऑफिस का मतलब होता है हाई पोस्ट। हाई पोस्ट माने ऊंचा वहदा। कहते हैं कि द इंडियन पीपल हु आर लिविंग इन द विलेजेस एंड रूरल एरियाज, भारत के लोग जो गांव में रह रहे हैं, जो देहात में रह रहे हैं, आर दे आर लिविंग इन सिटीज आर वर्किंग इन ए हाई ऑफिसेस, वे शहरों में रह रहे हैं, आर वर्किंग इन द हाई पोस्ट, या ऊंचे वहदे पर काम कर रहे हैं। एवरीबॉडी हैव pride. Everybody have pride. Pride means self-respect. Every Indian have pride. Self-respect. यहाँ पर in this line a number of adjective have come for the Indian people. Now look for the adjective which are qualifying the Indian people. भारतीय जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, चाहे वो शहरों में रह रहे हों, ऊंचे ऊंचे पदों पर, ऊंचे ऊंचे ऑफिसों में काम कर रहे हों, एवरीबॉडी हैव प्राइड। सबके पास प्राइड माने क्या होता है? गर्व, आत्मसम्मान है। लिवली सेंस मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एवरीबॉडी हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एवरीबॉडी हैव डिसेंसी। डिसेंसी मीन्स होता है गुड मैनर, शिष्टाचार है। एंड सिटीजनशिप, सबके पास जो है नागरिकता की भावना है। एवरी इंडियन वांट्स, एवरी इंडियन हैव ए स्ट्रांग डिजायर फॉर फ्रीडम। हर भारतीय के अंदर अपने देश के स्वतंत्रता के प्रति तीव्र भावना है। चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो जो है शहर में रहता हो, चाहे वो खेती करता हो, चाहे वह जो है ऊंचे पदों पर काम कर रहा हो, सभी लोगों के अंदर अपने देश की आज़ादी के प्रति जो है तीव्र भावना है। एवरी इंडियन और कल्चरल माइंड, हर भारतीय जो है संस्कारित मस्तिष्क का है। तो all these reasons I have fallen to India, यही कारण है कि मुझे भारत जैसे देश से प्रेम हो गया है। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा है। तो एक बार हम आपको I want to revise this question and this answer again. What was the reason
when writer had fallen in love with India? ये प्रश्न है, इसका उत्तर है writer is explaining that the pupil, the male and female boys and girls saw in India who are living in villages, rural areas, are living in cities and working in a high post. Everybody have a pride, self-respect, good manners and citizenship. Every Indian have a strong desire for their freedom. So I had fallen in love with India. यही कारण है कि मुझे भारत जैसे देश से प्रेम हो गया है। मैं भारत जैसे देश से प्रेम करता हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों में संस्कार है, अपने देश की आज़ादी के प्रति तीव्र भावना है, यहाँ के लोगों के अंदर आत्मसम्मान है, गर्व है। तो ये आपका उत्तर रहा। आगे लेखक कहता है कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वायर। लेखक कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि द ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ 9 ईयर, 9 साल की शरणार्थी की बच्ची, द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर who was born in a very dirty atmosphere, who was born in a very dirty atmosphere. Her parents are very poor. Her mother and fathers are not educated. They are uneducated. The little girl never went to any convent school. She was not taught grammar. She was not taught culture. She was not taught any books. But 9 साल की बच्ची जो एक गंदे वातावरण में पैदा हुई, एक गरीब परिवार में पैदा हुई, जो कभी स्कूल नहीं गई, जिसके माँ बाप अनपढ़ थे, जिसको कभी संस्कार की शिक्षा नहीं दिया गया, कभी संस्कारित शब्दों को नहीं बताया गया, बट दिस गर्ल give me a glimpse of warm soul of India. But 9-year girl मुझे भारत के जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा दिया। लेकिन उस लड़की ने जो कभी स्कूल नहीं गई, कभी उसको संस्कार का पाठ नहीं पढ़ाया गया, कभी उसको जो है शिष्टाचार का पाठ नहीं पढ़ाया गया, कभी स्कूल नहीं भेजा गया, लेकिन उस 9 साल की बच्ची ने, ग्लिम्स माने होता है झलक, झलक, लेकिन उस 9 साल की बच्ची ने मुझको जो है भारत के जीवंत आत्मा की एक झलक क्या कर दिया, दिखा दिया। इट इज द मेन रीजन I love with India. India and Indian are honest. Every Indian are have self-respect. They die for honor. तो मेरे बच्चों, इसी के साथ I finished
your first lesson of the prose, which was going on previous few days, but I want to put up a question, a very important question from this para.